Good morning students. In my previous video, I have introduced the basic concept of moment of inertia. Now today, we will learn the relationship between torque and moment of inertia. Let me consider any body which is rotating about its axis of rotation with angular acceleration alpha. Let this body consisting of number of particles, n number of particles having masses m1, m2, m3 up to mn, and the perpendicular distance from axis of rotation are r1, r2, r3 up to rn. Now, if a1, a2 up to an be the linear acceleration of the particles, these are the linear acceleration of the particles. So these are related with this angular acceleration alpha as a1 equal to r1 alpha, a2 equal to r2 alpha, and similarly for nth particle this is given by rn alpha. Now let me find force on particle of mass m1, यानी वन पार्टिकल वी आर टेकिंग, उसके लिए अगर हम फोर्स निकालते हैं इट इज़ m1 a1, दिस इज m1 r1 alpha. So moment of force about axis of rotation, this will be F1 into R1. So force is m1 r1 alpha into r1. This will be m1 r1 square alpha. So this is a moment of force about axis of rotation for first particle, let it be τ1. Similarly, moment of force for other particles will be m2 r2 square alpha, for third particle m3 r3 square alpha, and for nth particle mn rn square alpha. So total torque will be sum of all the individual torque. Now put the values m1 r1 square alpha plus m2 r2 square alpha and so on. So here we can take alpha common from all the terms. So term in the bracket, this term, this will become moment of inertia. So it can be expressed as summation mi ri square, where I vary from 1 to n into alpha. So tau will be equal to I into alpha. So this is the relationship between torque and moment of inertia. देखिए force एक्सेलरेशन से कैसे रिलेटेड होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. तो अगर यहाँ से डायरेक्ट हम रिलेशन को लर्न करना चाहें तो टॉक की जगह हम क्या, फोर्स की जगह क्या ले रहे हैं, टॉक, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लीनियर एक्सेलरेशन की रिप्लेसमेंट दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन. एंड सो दिस इज द रिलेशनशिप. Now if we take alpha, angular acceleration, to be unity, so torque will be equal to moment of inertia. So moment of inertia of a body about a given axis is equal to torque acting on a particle rotating with unit angular acceleration. Unit acceleration about it. So this is the way by which you can express torque in terms of moment of inertia. Now after this, next topic is relation between angular momentum and moment of inertia. Again we are considering a rigid body rotating about a given axis with angular velocity omega. So again we will consider that the body consisting of particles m1, m2, m3 up to so on mn, and their perpendicular distances from axis of rotation are r1, r2 up to rm. That omega is the angular velocity of all the particles. अब हमें निकालना क्या है, एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे दैट ईच पार्टिकल इज हैविंग सम लीनियर वेलोसिटी. सो v1, v2 up to vn be the linear velocities of the particles, and it is related to angular velocity by the relation v1 equal to r1 omega,
V2 equal to R2 omega and Vn equal to Rn omega. So linear momentum of one particle, any particle of mass m1. So this is m1 into v1. That means m1 r1 omega. So corresponding to it, what will be the angular momentum? This is also momentum. It will be, let it be L1 m1 r1 omega into, you can take it as r1. So it is m1 r1 square omega. Similarly, angular momentum of all the other particles will be this will be m2 r2 square omega, m3 r3 square omega, and so on, mn rn square omega. So angular momentum we have taken for all individual particles. So total angular momentum will be equal to m1 r1 square omega plus m2 r2 square omega, and so on. So here, taking omega common, we are getting m1 r1 square plus m2 r2 square up to mn rn square omega common. So it is summation mi square omega, mi ri square omega, and this is I omega, where I is summation mi ri square. So it means angular momentum L equal to I omega. This will be the relationship. As linear momentum क्या होता है? It is m into v. अब linear momentum की जगह हम rotational analogous ले रहे हैं angular momentum, तो mass m की जगह I, moment of inertia, और linear velocity की जगह angular velocity. Similarly, if we take omega to be 1, then angular momentum is equal to I. Hence, moment of inertia of a body about a given axis is numerically equal to angular momentum of a body rotating with unit angular velocity about the axis. यानी इस formula से on this basic condition we can take moment of inertia equal to angular momentum. Next is relation between torque and angular momentum. We know angular momentum related with moment of inertia by this result. So differentiate on both the sides, obviously with respect to time. So dl upon dt, I moment of inertia, d omega, this is angular acceleration, rate of change of angular velocity. So you can take this alpha is d omega by dt. Now, so here you can see that torque equal to I into alpha as we have obtained this result. So from these two results, torque equal to dl upon dt. It means this result, torque equal to rate of change of angular momentum, can also be obtained by using these two results. Already we have obtained these in the previous part. Now, using this basic concept, next point we will discuss principle of conservation of angular momentum. So here, according to principle of conservation of angular momentum, when no external torque act on a system, so in that particular case, when tau equal to 0, so what will be the result? Then you can use that this torque, angular momentum, will come out to be constant. It will remain to be same. So this is the basic result, that when no external torque is acting on a system, in that particular case, total momentum will remain conserved. So we will use this result as a main standard result, and on the basis of which we will discuss applications. So here, first of all, we will explain first very important application. You are familiar with that the planets revolve around sun in elliptical orbit. So when planet is revolving around the sun in elliptical orbit, as there is no external torque is acting, it is moving under the influence of internal forces.
Now, what is the conclusion? That angular velocity of revolution of planet around the sun in this elliptical orbit go on changing when either the planet moves closer to the sun और मूव्स अपार्ट. क्लोजर का मतलब क्या है? देखिए इलिप्टिकल ऑर्बिट है, यहाँ पर इस पॉइंट पे इट इज़ एट लार्जर डिस्टेंस. अब मूव करते करते अगर प्लैनेट इस पॉइंट पर आ गया या किसी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आया तो डिस्टेंस फ्रॉम द सन एज कम्पेयर टू दिस पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा. तो यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंगली व्हेन इट इज़ कमिंग क्लोजर, सो देयर इज़ angular velocity that will not remain to be same at every point, but it will keep on varying. In fact, angular velocity when the planet comes closer to the sun, it is increasing. How can we explain it? This can be explained on the basis of this result that L equal to I omega. When the planet comes closer to the sun, so as per this result, what we conclude? That moment of inertia of the system that will decrease. Why it will decrease? Because देखिए ये perpendicular distance जब ये क्लोज आ रहा है तो ये डिस्टेंस कम हो रहा है, ये कम होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है. तो व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम हियर? दैट आई ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट. इट मीन्स आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, और ओमेगा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया. What does it mean? क्योंकि planet when it is coming closer to the sun, moment of inertia decreases, so angular velocity will be increasing. Similarly, when planet moves away, यानी मूव करते हुए जब ये दूर जा रहा है तो distance from the sun is increasing. अब distance बढ़ने से क्या होगा? Moment of inertia increase हो जाएगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी. यानी आपको ध्यान रखना है जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा उस केस में एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी. वाई? इन ऑर्डर टू कीप दिस प्रोडक्ट एल इक्वल टू आई ओमेगा टू बी अ कांस्टेंट. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ another application, a circus acrobat when he performed feats so it involved spin by bringing arms and legs closer to the body. When the person that is performing this activity, then arms and legs sometime outstretches, sometime bringing closer to the body. So what is the purpose? Basically जब acrobat अपनी body को, अपनी arms legs को close लाता है तो उस केस में distance decrease हो जाता है. Distance decrease होने से moment of inertia decrease होगा और angular velocity of rotation यानी spinning की speed बढ़ जाएगी. तो why the person is doing it? So that he or she can effectively increase or decrease the angular speed of rotation. So a circus acrobat performed feats involving spin by bringing his arms and legs closer to her body. On bringing arms and legs closer to the body, distance will decrease, moment of inertia will decrease, and hence angular velocity increase, means speed of rotation will increase. Likewise, there can be many other applications. Similarly, a ballet dancer performed feats by outstretching her arms and legs outward. डांसर है, अगेन वो क्या करता है? वो भी अपनी बॉडी को, अपने आर्म्स एंड लेग्स को आउटस्ट्रेच करते हैं. आउटस्ट्रेच करने से क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बढ़ जाएगा. डिस्टेंस बढ़ने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल इंक्रीज, एंड अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी. सो वी आर कमिंग अक्रॉस नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, बट बेसिक रिजल्ट इज सेम. L इक्वल टू आई ओमेगा. L कांस्टेंट है तो जहाँ I मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा वहाँ एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगा, एंड वॉइस वर्सा. Now the next point that we are discussing is quite important. See, many a times you have seen that a person is diving from a board from a great height on the bank of a pool, and while diving the person fold its body, यानी फोल्ड इट्स लेग्स एंड आर्म्स टुवर्ड्स इट्स बॉडी, एंड इसका करने से क्या होता है? देन द नंबर ऑफ रोटेशंस, नंबर ऑफ कर्ल्स विद इन द एयर इंक्रीजेस, and after that when the person is about to touch the water, then again outstretches its arms and legs. So reason will be the same as we are explaining. So now let we have a view of this particular activity. A diver performed somersaults by jumping from
a high diving board, कीपिंग हिज लेग्स एंड आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड फर्स्ट. सबसे पहले स्ट्रेच करते हैं आर्म्स एंड लेग्स को. क्यों करते हैं? क्योंकि उस टाइम पर एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन कम होना चाहिए. सो देयर आफ्टर दैट इनिशियल स्टेज पे कभी भी कोई पर्सन डाइव करता है तो आर्म्स को स्ट्रेच करता है एंड देन कर्ल हिज बॉडी. अब कर्लिंग के टाइम पर उसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को वेरी करना है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर एंगुलर स्पीड को बढ़ाना है. सो ऑन डूइंग सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हिज बॉडी डिक्रीजेज. वाई? क्योंकि कर्ल करने से बॉडी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट डिस्टेंस, बॉडी का डिस्टेंस आर्म्स एंड लेग्स का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट वो डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा एज एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. देयरफॉर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी विल इंक्रीज and the person perform somersaults. That means number of rotations in the air will increase. And as the diver is about to touch the surface of water, again he outstretch his limbs or arms and legs. Basic purpose क्या है कि water surface पे touch करते time again he has to decrease its angular speed. तो ऐसा करने के लिए further moment of inertia को बढ़ाना पड़ेगा and hence that can be done only by stretching the arms and legs. So these are the few applications that I have discussed on the basis of conservation of momentum. Apart from it, there can be many other applications also. When you will go through other conceptual problems for reference book, then you will come across another examples. Let me take few examples from the conceptual problems. Likewise, explain why speed of whirlwind in a tornado is high. Tornado टॉर्नेडो में क्या होता है कि विंड का एक कर्ल बन जाता है. सो एयर गेट कॉन्सेंट्रेटेड इन अ स्मॉल स्पेस. कई बार आपने देखा है ओपन एरियाज में एयर के क्रॉस यानी जो आपके पास जो एयर में एयर भंवर की तरह गोल गोल राउंड की फॉर्म में मूव करना शुरू करती है तो उसमें क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? व्हिर्लविंड बोलते हैं. सो इन अ व्हिर्लविंड एयर गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड इन अ स्मॉल रीजन. जब कॉन्सेंट्रेटेड यानी वो एयर का कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल रीजन में हो गया तो वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा. तो जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उतना ही उस व्हिर्लविंड के रोटेशन की स्पीड बढ़ जाएगी. हेंस यू कैन से ऑन अकाउंट ऑफ डिक्रीज ऑफ डिस्टेंस moment of inertia will be constant, so angular velocity will increases. So that's why I explain why speed of whirlwind in tornado is high. speed ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि whirlwind में जो सारा मैटर होता है वो कम डिस्टेंस पे कॉन्सेंट्रेट करता है. तो कम डिस्टेंस पे कॉन्सेंट्रेट करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेस होगा, एंगुलर वेलोसिटी विल बी मोर. Another example, in a flywheel most of the mass is concentrated at rim. Why? देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मास एट द रिम. अब देखिए, अगर मैं मान लो ये पॉइंट लूँ और इससे ये सेंट्रल डिस्टेंस है तो फ्लाई व्हील में सेंटर से यहाँ पेरीफ्री पे यानी फ्लाई व्हील की रिम पर मास कॉन्सेंट्रेट है. तो जिससे क्या होगा? ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा. अब ये डिस्टेंस बढ़ने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा एंड इट विल ब्रिंग स्मॉल चेंज इन एंगुलर स्पीड. हैंस फ्लाई व्हील हेल्प इन मेंटेनिंग यूनिफॉर्म मोशन. तो बेसिकली जब हम फ्लाई व्हील का कॉन्सेप्ट लेते हैं तो जनरल पहला अभी हमने क्वेश्चन किया है कि मैटर हमारा रिम पर क्यों कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर मास कॉन्सेंट्रेट होने से क्या होगा, जर्क की मोशन उसका अवॉइड हो पाएगा, जिसकी वजह से एंगुलर स्पीड आपकी चेंज कम होगी तो ऑलमोस्ट मोशन यूनिफॉर्म लगेगा. सी here, the motion of the vehicle can be reduced by attaching flywheel with the engine. तो अभी हमने कहा था कि flywheel में मैटर मास हमारा कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है? रिम पे. तो अब इसी का दूसरा फॉर्म क्या दिया है कि अगर व्हीकल में हम फ्लाईव्हील कनेक्ट करते हैं इंजन के साथ तो उसका मोशन हम यूनिफॉर्म कर पाते हैं, तो जर्कीनेस इन द मोशन कैन बी रिड्यूस्ड. This is the reason being the same. A flywheel is a circular disc capable of rotating about an axis passing through its center. So by connecting flywheel, what will happen? Moment of inertia increases. So angular velocity of rotation decrease हो जाएगी. अब angular velocity of rotation में यानी कोई change नहीं होगा तो jerks वही wheel में vehicle में कम होंगे, जिससे कि motion कैसा होगा? Almost uniform. Another question we take, if earth were to shrink suddenly. ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स में और कई बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज़ करते हैं. अर्थ वर टू श्रिंक सडनली, देन व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द लेंथ ऑफ डे. देखिए, सबसे पहले हम इसको कॉन्सेप्चुअल पॉइंट से देखते हैं कि अगर अर्थ
श्रिंक हो जाती है, तो श्रिंक होने से इसका मतलब इसका रेडियस डिक्रीज़ होगा, रेडियस डिक्रीज़ होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज़ होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज़ होगा तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी। अब एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट वही है जो अब तक हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंगुलर वेलोसिटी टाइम पीरियड के साथ कैसे रिलेटेड है, 2π/t, यानी अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। इट मीन्स when the earth shrink, then in that particular case the length of the day will decrease because total time will decrease. So this is the explanation part. यहाँ आपको एक conceptual form में दिया हुआ है, कई बार इसमें डेटा भी गिवन होते हैं कि इतने अमाउंट से डिक्रीज हो गया, then you can calculate the length of the day. Now if we take another conceptual, suppose if ice on the polar caps melt, then how will it affect the duration of the day? इसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हमने अभी किए। इसमें क्या बोला है, पोलर कैप्स पे अगर आइस मेल्ट होती है, देखो आइस अगर मेल्ट होगी तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो मेल्ट होने से लिक्विड मैटर ज़्यादा डिस्टेंस तक जा पाएगा, तो डिस्टेंस बढ़ने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो क्या होगा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो अब ओमेगा क्या है, 2π/t, यानी ओमेगा डिक्रीज तो टाइम विल इंक्रीज, यानी इस केस में मेल्ट होने के केस में लेंथ ऑफ द डे, ड्यूरेशन ऑफ द डे, इट विल इंक्रीज। जबकि अगर अर्थ श्रिंक हो रही थी तो वहाँ पर इससे रिवर्स था, दैट वाज द लेंथ ऑफ द डे विल डिक्रीज, हियर लेंथ ऑफ द डे विल इंक्रीज। नाउ वन अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम टेकिंग, how will you distinguish between hard boiled egg and raw egg? Yani simply if you have been given one boiled egg and raw egg, so what kind of motion, how can you differentiate between their motion? तो सबसे पहले देखिए, जब हम बॉइल्ड एग लेते हैं तो उसमें क्या होता है, जो उसके अंदर जितना भी लिक्विड मैटर है वो क्या हो जाता है, सॉलिडिफाइड हो जाता है। अब सॉलिडिफाई होने से क्या हो गया, उनका डिस्टेंस फिक्स हो गया, जिससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यानी रोटेशन की स्पीड बढ़ जाएगी। जबकि जब हम रॉ एग लेते हैं, रॉ एग में क्या है, लिक्विड मैटर है, तो लिक्विड मैटर अलग अलग डिस्टेंस पे है, कोई एक फिक्स पॉइंट तो है नहीं, पेरीफ्री पर भी है एग की, सेंट्रल रीजन में भी है, तो यहाँ पर हर पॉइंट पर है, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। तो करस्पॉन्डिंगली इन दिस केस मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी मोर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोर है तो एंगुलर स्पीड कम होगी। अब इन दोनों केस में, यानी कि अगर हम हार्ड बॉइल्ड एग और रॉ एग को स्पिन करें तो हम दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा स्पिन करेगा, किसकी एंगुलर स्पीड ज़्यादा होगी, हार्ड बॉइल्ड एग विल स्पिन फास्टर, इसकी एंगुलर वेलोसिटी एज वेल एज एंगुलर एक्सीलरेशन इट विल बी मोर, सो इट विल स्पिन फास्टर एज कम्पेयर टू रॉ एग। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आउट ऑफ हार्ड बॉइल्ड एग एंड रॉ एग विच विल स्पिन फास्टर, सो द सेम रीजन you can give. After this, let me learn the formulas for moment of inertia of different simple geometrical object about the axis. We have not to derive those formula, that is not in our syllabus. हमें simply इनकी values learn करनी है, क्योंकि आगे जो numericals या concepts हैं वहाँ directly हमें उनकी value substitute करनी है। तो सबसे पहले moment of inertia of a circular ring about an axis passing through its center। उसका फॉर्मूला हम याद करेंगे कि मान लो कि रिंग है जिसका मास m है और रेडियस r है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी अगर मान लो मैं रिंग ऐसे ले रही हूँ तो एक्सिस उसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा। जैसे अगर आप ये देखिए कि मान लो अगर ये रिंग है एक, तो रिंग के परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी होगी, कि एक ऐसी लाइन जो इस रिंग से पास कर रही हो, यानी इस तरीके की। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एनी एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, इसका फॉर्मूला होता है mr²। अब इसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस passing through
सेंटर। देखिए रिंग की जगह डिस्क है, रिंग और डिस्क में क्या फ़र्क है कि रिंग बीच में से होलो है लेकिन डिस्क में सब जगह मैटर होता है। तो हम अगर मास m लें, रेडियस r लें, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट होगा mr²/2। अब देर कैन बी वन क्वेश्चन कि रिंग में सेंटर में कोई भी मास नहीं है, सारा मास पेरिफ्री पे है, फिर भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो हम इसको इसी पॉइंट से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है वो यहाँ पर उसका मैक्सिमम डिस्टेंस है। जब डिस्टेंस मैक्सिमम होने से, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr², यानी प्रोपोर्शनेट डिस्टेंस, मास तो वही है, वही मास ज़्यादा डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होने से तो टोटल इम्पैक्ट ज़्यादा हो गया, इट मीन्स mr²। लेकिन डिस्क के केस में क्या है, हर पॉइंट पर मास कॉन्सेंट्रेटेड है, उसका डिस्टेंस वेरी कर रहा है। तो अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पे, यानी यहाँ पर जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कम, तो करस्पॉन्डिंगली हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होने की वजह से डिस्टेंस वेरी कर रहा है। तो यू कैन लर्न दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क विल बी लेस एज कंपेयर टू रिंग। दिस जस्ट द theoretical concept you have to understand. Mathematically you have not to find it. Next is, if you are taking a rod that is having length L, its breadth is ignored. So if you are taking a rod, so moment of inertia of the rod of length L about any axis passing through its center, passing through center, so it will be ml²/12. so this is about this. अब अगर हम एक लेमिना ले लें जिसकी लेंथ L हो, ब्रेथ B हो, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर हमें याद रखना होगा, दैट विल बी ml² + b²/12. Very rarely this formula will be used, but you must understand it. कि एक रेक्टेंगुलर लेमिना जिसकी लेंथ L, ब्रेथ B है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर क्या होगी, ml² + b²/12. Now moment of inertia of hollow cylinder, again about an axis passing through center, इसका फॉर्मूला होगा mr²/2. तो देखिए इसको अगर हम रिकॉल करें, ये होलो सिलेंडर कहें या ये रिंग कहें, दोनों का फॉर्मूला सेम है। इसको आप कोरिलेट कैसे कर सकते हैं कि भाई रिंग, सिलेंडर भी होलो है, अगर हम रिंग्स को एक के ऊपर एक प्लेस कर देंगे सेम रेडियस की, अब अगर हम ऐसे प्लेस करते जाएं तो हमारे पास जो ये होलो सिलेंडर बना, यानी वो एक तरह से रिंग्स के कॉम्बिनेशन से बना है, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर हम लें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर जो कि डिस्क से बना होगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr², दैट इज सॉरी ये फॉर्मूला उल्टा हो गया, दिस इज mr², क्योंकि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr² और सॉलिड सिलेंडर का हो जाएगा mr²/2. Ring and hollow cylinder having moment of inertia mr², solid cylinder will having moment of inertia mr²/2 as that of the disc. Now two more results we will take. Moment of inertia of hollow sphere about its diameter. स्फीयर आप एज्यूम करो एक फुटबॉल लें या बॉल लें जो कि बीच में से होलो है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके डायमीटर के अबाउट होगा 2/3 mr². ऑब्वियसली m मास r रेडियस. अब अगर हम कहें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट द डायमीटर, इट विल बी 2/5 mr². सो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो मैंने आपको बताए हैं, 8 formulas I have given. So these will be used as a standard result at many places in numericals. You will use these formulas directly. So learn these formulas. Before proceeding further, I will tell you one correlation. हमने radius of gyration पिछले लेक्चर में बताया था. तो radius of gyration को हम क्या कहते थे? That is, it is a perpendicular distance of a point where whole mass of a body is supposed to be concentrated. यानी एक बॉडी के अंदर एक पॉइंट का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं. तो अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस ऑफ गायरेशन की टर्म्स में लेना था तो हम उसे लिखते थे m²
तो बेटा इन फॉर्मूलेस के बेसिस पर, ये जितने भी हमने 8 फॉर्मूलेस किए हैं, इनके बेसिस पर आपको के रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड आउट करना भी आ सकता है। तो वो कैसे निकालेंगे? मान लो मैं इसी केस का ले लूँ, ये सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/5 mr²। तो मैं क्या कि 6 इक्वेट करूँगी इसको m² क्योंकि स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस सेंट्रल पॉइंट के अबाउट कितना है m²। इट विल बी 2/5 mr²। तो m से m कैंसिल, k² इज़ 2/5 r²। तो k क्या हो गया? √2/5 r। Similarly, if we will find moment of inertia of this hollow sphere, तो उस केस में क्या होगा? m² 2/3 mr²। तो यहाँ से k क्या हो जाएगा? √2/3 r। तो हर इंडिविजुअल केस में आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं सॉलिड सिलेंडर या डिस्क के केस का रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू r/√2। और होलो सिलेंडर या रिंग के केस का क्या हो जाएगा? m² इक्वल टू mr²। सो k विल बी इक्वल टू r। तो बेटा ये रिजल्ट्स भी हम न्यूमेरिकल्स में कई जगह यूज़ करते हैं या फिर 1 मार्क में आपको कंफ्यूज करने के लिए डिफरेंट फॉर्म में फाइंड आउट करवा सकते हैं। सो जस्ट अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स। नाउ आफ्टर दिस आई एम टेकिंग वन न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। So what will be the duration of the day if Earth suddenly shrink to 1/64th of its original volume? यानी अगर ओरिजिनल वॉल्यूम v है तो चेंज होने के बाद इसकी वॉल्यूम हो गई 1/64th ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। मास रिमेनिंग सेम, चेंज आया वॉल्यूम में। अब सबसे पहले देखिए अर्थ की शेप क्या है। अर्थ स्फेरिकल है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 πr-3 इक्वल टू 1/64। इनिशियल वॉल्यूम होगा 4/3 πr³। r हमने इनिशियल रेडियस लिया और श्रिंक होने के बाद इसका रेडियस लिया हमने r'। तो कॉमन फैक्टर विल कैंसिल आउट, r' विल बी r/4। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड्स यू कैन कैलकुलेट द रेडियस, यानी श्रिंक होने के बाद रेडियस आ गया। एज नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग, टोटल एंगुलर मोमेंटम विल बी कॉन्स्टेंट। So it means I into 2π/t it will be constant। अब देखिए अभी मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शियाज के फॉर्मूलेज कराए हैं, तो इस केस में यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? एज अर्थ इज़ अ सॉलिड स्फीयर, सो हेयर यू विल यूज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। सो यहाँ पर आप कहेंगे I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2, राइट। ओमेगा के टर्म्स में लिख दो या पाई या 2π/t की फॉर्म में लिख लो, एक ही बात है। अब इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना है? 2/5 mr² इंटू ω1 दैट इज़ 2π/t1। और फाइनल रेडियस चेंज है तो वो रेडियस हमारी r' हो गई एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 mr² एंड एंगुलर वेलोसिटी को हमने कन्वर्ट किया। देखिए जो कॉमन फैक्टर है दैट ऑल विल बी कैंसल्ड आउट and we are left with here r²/t1 equal to r'²/t2। so t2 क्योंकि हमें क्या बताना है? what will be the duration of the day when earth shrink, यानी कि आपको t2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से आ जाएगा r'² into t1। so what is the original length of the day? 24 hours। so r'/r we can take r' is r/4, so r'/r will be 1/4। to put all these values here, t2 will be, this is 1/4² into 24, this is 1/16 into 24। so सॉल्व कीजिए, यहाँ से हो जाएगा 3/2 यानी कि हो गया 1.5 hour। so in that case what will be the duration of the day? it will be 1.5 hour। So that's all for today. Today we have discussed relationship between torque and angular momentum, torque and angular momentum by relating by the moment of inertia, and conservation of angular momentum, and some basic formula for moment of inertia. So just revise all these concepts carefully. Application on the basis of conservation of important are very important। इसके ऊपर ज़्यादातर conceptual question मिलता है या इस टाइप से जैसे एक आपका कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हो सकता है। सो प्रिपेयर द टॉपिक्स थॉरली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।